Hello and welcome to 3.0 TV. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara. Money laundering, Foreign Exchange Management Act violations and KYC compliances have become the buzzwords for India's Economic Offences Investigative Agency. To put matters in perspective, India's Enforcement Directorate has registered more than 1,180 cases of money laundering and 5,313 FEMA violations in 2021-22, the highest in any fiscal year. So Ruchi, the government has an ample of occasions warned that it will take stringent action against those evaders and entities trying to evade paying taxes or indulging in illegal economic activities. So what this story is all about? Continuing its money laundering probe into the instant micro loan app scam, the ED on Thursday searched 5 premises related to crypto exchange CoinSwitch Kuber in a case pertaining to alleged flouting of the Foreign Exchange Management Act norms by the crypto exchange. So the searches which were conducted at residence of the company's directors, its CEO Ashish Singh's residence, and the official premises of the CoinSwitch Kuber. So 3.0 TV spoke with the exchange spokesperson, and that's what they have to say. So we received queries from various government agencies. That's what they have mentioned. Our approach has always been that of the transparency. The crypto is an early stage industry with a lot of potential, and we continuously engage with all the stakeholders. ED on CoinSwitch Kuber, why is ED probing cryptocurrency exchanges? The history behind Chinese loan app searched. तो मनोज, ईडी ने अब फिलहाल बहुत ही सख्त रुख अपना लिया है। ईडी का फिलहाल एक ही एम है कि जो 1,000 करोड़ की लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्राइम के थ्रू, उसके पीछे कौन है। कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये इंस्टेंट लोन ऐप्स जो हैं जिनके चाइनीज कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इसका बेसिस है। लेकिन साथ ही साथ ईडी ने ये भी कह दिया है कि 10 क्रिप्टो एक्सचेंज उनकी नज़र में है, जिनमें से अब जो CoinSwitch Kuber है वो तीसरे नंबर पे है। हम एक थोड़ा सा पीछे आते हैं। 2 वीक पहले की एक इंसिडेंट है जो हम हमारे व्यूअर्स को एक्सटेंसिवली हमने कवर भी की थी, बिनांस और WazirX का जो स्पैट था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो WazirX की जो प्रॉपर्टी, जो उनके जो डायरेक्टर थे, उनकी प्रॉपर्टी पर ईडी ने एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेटिव थिंग दे हैव टेकन इट फॉरवर्ड, और वहां पर कुछ देयर वाज सम काइंड ऑफ लिंक that was established, and hence his accounts were frozen, which was और उनका जो वैल्यू था वो लगभग 64 करोड़ के करीब पहुंचा था। हमने बहुत एक्सटेंसिवली वो कवर भी किया हुआ है। So why this is happening? Because ये investigation, and there was some other investigation that was going on as far as the Chinese app is concerned. तो इंडिया में there were lot many apps that were found, जहां पर ईडी को कुछ ऐसा पता चला था कि यहाँ पर चाइनीज जो डायरेक्टर्स हैं वो ये कंपनी में इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट गेटिंग लीगल लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया एज फार, क्योंकि अगर कुछ भी लेंडिंग एक्टिविटीज में अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो आपको आरबीआई का बट ऑब्वियस है कि वो आपको एक अप्रूवल लगेगा ही, लेकिन वो उनके पास में अप्रूवल नहीं था। दिस वॉज द पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पता चला, एंड यहाँ पर एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ ऐसा एक रुख ऐसा लिया कि यहाँ पर they used cryptocurrency exchange to take out money from there. This was the actual reason why इनके ऊपर लेंस आई, और इनके ऊपर लेंस आने के बाद में this was the established link which we found out. और NBFCs को लेकर आप if you can just you have done some research on that, how was this linked to the entire NBFC space? तो थोड़ा सा मनोज, मैं भी आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगी। तो जहाँ ईडी को बहुत सी कंप्लेंट्स मिली और बहुत सा उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु वर कमिटिंग सुसाइड, एक बहुत ही इमोशनली एंगल था जहाँ पर लोग बहुत त्रस्त हो गए थे। उन्होंने कुछ इंस्टेंट ऐप से लोन लिया था जो कि बहुत ही हाई रेट पर इंटरेस्ट ले रहे थे उसके बावजूद, और लोग बहुत मुश्किल से वो इंटरेस्ट पे भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। तब जाकर बहुत सारी FIRs जो है वो रजिस्टर की गई हैदराबाद में, साइबराबाद में, और विच वर अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अंडर 400 लोन ऐप्स थी, मोबाइल ऐप्स थी, और कुछ 50 NBFCs भी थे जो कि रजिस्टर्ड थे RBI के साथ। तो हुआ क्या कि कुछ ऐसी NBFCs थी जिनका लिंक देखा गया कि चाइनीज कंपनी के साथ है।
तो पहले ईडी ने आरबीआई को इसके बारे में बताया, लिखा कि इन जो एनबीएफसीज हैं इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए। तो ये भी थोड़ा पहले की बात है। 2019 में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज थी, वो इंटरेस्टेड थी इंडिया में एंटर करने के लिए, और वो चाहते थे कि वो इंडिया में अपनी जो है लेंडिंग बिजनेस को बढ़ाए, लेकिन आरबीआई ने उनको एनबीएफसी लाइसेंस नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एग्रीमेंट किया, जो इंडियन एनबीएफसी थी उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट देकर उनके लाइसेंस को यूज़ करके यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग उन्होंने शुरू की, और उन्होंने अपनी जो है फिनटेक एप्स यहाँ पर इस्टेब्लिश की। उसके बाद हुआ ये कि 2020 में जब चाइनीज़ एफडीआई को सीज कर दिया गया, तो इन चाइनीज़ नेशनल्स ने अपनी कंपनी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, एंड दे मेड द एनबीएफसी इंडियंस लिंक्ड विद दिस कंपनीज टू एक्ट एज डमी डायरेक्टर्स। तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जाल बुना गया, और जब इसकी तहकीकात हुई तो दिखा कहीं ना कहीं कि बहुत सी कंपनीज जो है वो या फिर कहूँ ये लोन ऐप्स जो हैं वो कंपनीज के थ्रू और इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू अपने मनी को राउट कर रहे थे। So that was actually the concern, जहाँ पर WazirX और Binance का ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में असेट्स उनके फ्रीज हो गए, और वहां से Binance और WazirX का स्पैट आगे बढ़ा, और इनफैक्ट ये दिस इज एक्चुअली एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, और ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लेकर यहाँ से और कितने एक्सचेंजेस और कितने क्रिप्टो इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं वो उनके फिरात में आते हैं। तो यहाँ मनोज, हमने एनबीएफसी का जो पूरा एंगल है वो हमने डिस्कस किया, क्या शुरुआत थी, क्या बेसिस थी, कहाँ से पूरी सर्च शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई ने भी बहुत से मैं कहूँगी कि लोगों का पैसा डूबने से बचाया एक तरह से। बिल्कुल, हम इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को ये बता भी दें कि शक्तिकांता दास जो एक इंटरव्यू में ईटी नाउ के साथ में उन्होंने एक इंटरेक्शन भी किया था, एंड ही सेड दैट द वार्निंग बेल्स साउंडेड बाय द इंडियन सेंट्रल बैंक परसुएडेड पीपल टू अवॉइड क्रिप्टो करेंसीज। वो टाइम पर उन्होंने एक रेड फ्लैग रेस किया था, वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा भी बचा हुआ है, बिकॉज वहां से लेकर क्रिप्टो मार्केट हमने देखा कि बिटकॉइन 68,000 के करीब था, और वहां से लेकर स्लिप होके लगभग 17,500 की तरफ आया। और इनफैक्ट उन्होंने काफी अच्छा एक इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी बचाया, एंड ही साउंडेड ऑफ हैप्पी। आई मीन ही टोल्ड दैट कि आई एम हैप्पी वी साउंडेड दोस वार्निंग सिग्नल्स, दास सेड इन दैट interaction. Anecdotally, I am aware that many people do not invest in crypto, or they sort of pulled out of the crypto thanks to the caution that the concern that emanated out of the Reserve Bank. And this is what he had maintained. यहाँ पे लेकर बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की तरफ जो हमारे आरबीआई का जो स्टैंड है वो काफी स्ट्रिक्ट है, एंड दे डू नॉट वांट टू एनकरेज दिस इंस्ट्रूमेंट। तो वो कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्टर्स भी सेफगार्ड होते हैं, उनका पैसा भी सेफगार्ड होता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की जो सारी एक्टिविटीज हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगती है। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का भी इनफैक्ट वही है जो हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है हमारे फोरम पर, कि यहाँ पर हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है कि गवर्नमेंट का भी एक ऐसा ही रुख है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जितने भी कंसर्न्स है वो इमीडिएट रडार में आ जाएंगे, एंड हेंस दिस ईडी थिंग इज व्हिच इज बिहाइंड देम, बिकॉज ऐसी एक्टिविटी को कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहता है, फॉर दैट मैटर यहाँ पर भी और ग्लोबली भी। जी, तो हमने बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात की, CoinSwitch कुबेर के इस पूरे मुद्दे पर हमने उनसे उनका रिएक्शन, उनके कमेंट्स लिए। क्या है वो रिएक्शंस, आइए आपको दिखाते हैं। ED has just raided CoinSwitch Kuber on charges of money laundering and violation of FEMA Act. This is the third crypto exchange where the agency has taken such a step. Indian crypto exchanges volumes is already down 90% since April 2022, where taxation of 30% came. These alleged actions by exchanges and subsequent raids by ED further erode the trust that consumers have towards crypto exchanges and offering. CoinSwitch makes crypto investment simple and fully compliant with the laws of land. The application is available to download for Indian residents on the leading app stores Google Play Store and Apple App Store. A user has to complete KYC, verify the mobile number, and register Indian bank account before making any purchase or trade on the CoinSwitch platform. Our stringent norms and standards are designed to bring trust and transparency to the industry. Further, CoinSwitch does not permit wallet-to-wallet transfer of crypto assets, ensuring the crypto assets remain within the KYC compliant ecosystem, company spokesperson have said. तो आपने CoinSwitch कुबेर और साथ में बाकी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी आपने राय, उनका भी व्यू आपने यहाँ देखा, लेकिन यहाँ मनोज हमने भी CoinSwitch कुबेर की जो टीम है या CoinSwitch कुबेर से हमने बात की थी, और उनकी बातचीत में बहुत चीज़ें सामने खुलकर आई, बहुत चीज़ों में क्लैरिटी नजर आई। आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल, इनफैक्ट हमने जब भी उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि ये रिएक्शन तो बनता ही है, बिकॉज देयर इज अ प्रिंसिपल व्हिच वी फॉलो। कुछ भी अगर खबर देने से पहले वी टॉक टू देम, एंड उनसे बातचीत करने के बाद में हमें ये पता चला कि दे वहाँ पर दे आर फॉलोइंग द KYC नॉर्म्स। वो क्यों फॉलो कर रहे हैं हम हमारे व्यूअर्स को बता दें। इनफैक्ट अगर आपको वो एक्सचेंज के साथ में अगर कोई भी अगर अकाउंट एक्टिविटी अगर उनके साथ में करनी है, तो वो यू हैव टू प्रोवाइड योर एंटायर डिटेल्स विद देम। वो डिटेल्स आपके बैंक अकाउंट डिटेल से मैच होना चाहिए, साथ में आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आएंगे, और दोनों मैच होने के बाद ही आप वहाँ पर आप अपना अकाउंट आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप उनके साथ में आप खोल सकते हैं। और इनफैक्ट दे कॉल देम एज एन एग्रीगेटर, दैट्स व्हाट वी हैव बीन रीडिंग इन एवरीवेयर कि वो एक एग्रीगेटर है, और लिक्विडिटी उनको और कोई एक्सचेंज से उनको मिलती है, प्रोवाइड की जाती है। विल नॉट गेट इनटू कौन प्रोवाइड करता है, बट उनको लिक्विडिटी कोई और एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है यहाँ पर, हमें ये जानना हम ये हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का उनके हिसाब से कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता नहीं है, बिकॉज वहां पर दे डू नॉट एनकरेज peer to peer. अगर say for example if you want to buy a Bitcoin, then you have to sell a Bitcoin on that exchange only. You cannot withdraw money, or say for example I mean you cannot transfer it to some other wallet and these things. जो भी आपका एक्टिविटी है वो यही एक्सचेंज के साथ में, यही अकाउंट के साथ में आपको करना है. That is what they have maintained, and they are saying that they are clean from the situation. So and let us see कि यहाँ पर ED की इन्वेस्टिगेशन का रुख और किधर जाता है. That's all there is in this special segment. This is Manoj Zara signing off. And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great day.